Mr. Asif started the business in 2006. Physiologics providing services of machine automation, plant automation, and recently they have started the home automation. Physiologics technologies are also involved in manufacturing and installation of dairy plants, process chillers, water and compressor system designed to control the industrial process. Mr. Asghar Ali Ansari, CEO, Jalandhar Foods, Bakers, Sweets and Dairies. His father, Mr. Haji Anwar Ali Ansari, started the setup of Sweets and Bakers in 1959. And Jalandhar Sweets is one of the famous brand name in southern Punjab. They have 13 outlets in Rohingya Farm, Sadiqabad, and now they are expanding their business to other cities, especially in Lahore. He traveled all the way from Rohingya Khan to attend this event. He also have a gift of sweets for all of you. Mr. Bilal Bhatti, CEO of B&B Import from Germany, is also present here. He is a big supplier of medicine and of consumer goods from Germany and Canada. We also have a few gift hampers for all of you. I would like to thank all of you sitting here, especially to Mr. President, LCC, that they gave me the opportunity to introduce myself, my friends, and with LCC members and the Minister of President. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Shoaib. Thank you very much. Now I would like to request Mr. Muhammad Harun Arora, convener of this committee, to say a few words. Thank you very much. Thank you, Mr. President. I'm really thankful to Honorable Federal Ministers Fawad Chaudhry sir to grace the occasion on this launching of this app. Almost everything has been covered by our President sir, so I don't think repetition is good. To save the time, only one or two things I would like to thank our whole team, especially Mr. Anis, whose supervision is really remarkable to develop this app. And one thing I want to tell and inform to our EC that this app is absolutely free as previous Android app which we already developed. And I'm really thankful. I think the President sir is here, so the better President sir will proceed further. Thank you very much. Thank you. Yeah, I would like to thank Shoaib Beg sahab from myself and my executive committee के जो हमारी Android की ऐप भी थी और iPhone की थी, इनके ऑफिस ने हमारे IT डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ मिलकर डेवलप की है और not a single penny was charged to Lahore Chamber. Thank you very much, Muhammad Harun Arora sir. Thank you very much, Mr. President. I would request all the participants to welcome Chaudhry Fawad Hussain, Federal Minister for Science and Technology, who is straight coming to Islamabad, a long journey. Please welcome him, and I would request, sir, please express your views as well. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तारिक मिसबा साहब, ताहिर मंजूर साहब और बाकी सारे जो चैम्बर के अहदेदारान हैं, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। तारिक मिसबा साहब से, असल में तो मियाँ मिसबा साहब से हमारा ताल्लुक़ जो है वो, मेरा तो मियाँ साहब अगर माइंड ना करें, ज़्यादा बुज़ुर्ग ना फील करें, तो बचपन का ही है। Literally, I always feel myself as a part of the family, and it's been, I even don't remember that when first time we met actually. So it's very actually delightful that I am here on the invitation of Tariq today. देखिए जी, हमारा, मैं पहले एक तो चैम्बर्स को मैं ये पहले भी मैंने पिंडी में भी बात की थी और अब आज मौका मिला आपसे भी थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए पाकिस्तान में एक तो हमारा तासुर ये है कि हम कोई बड़ा बैकवर्ड मुल्क हैं और हमें कुछ शायद आती नहीं थी चीज़ें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए 1952 में हमने पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे PCSIR कहते हैं, उसकी बुनियाद रखी थी और सलीम-उज़-ज़मान सदीकी साहब जैसे बड़े साइंटिस्ट उस वक़्त उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। और उस वक़्त जब हमने इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक रिसर्च का ये जब हमने डिपार्टमेंट बनाया तो उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड में भी इस किस्म के इदारे बड़े कम थे, चाहे जाए का आप मुस्लिम वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड की बात करें। और फिर 1960 का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो वी ओ इट टू PCSIR, वो PCSIR की वजह से मुमकिन हो सका था। इसी तरीके से 1959 में जब हमने डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे बड़े कद के लोगों ने यहाँ पे स्पेस प्रोग्राम पाकिस्तान का शुरू किया
और 1961 में जब हमने पहला रॉकेट अपना खला में भेजा था, तो पाकिस्तान इस रीजन में उस वक़्त सोवियत यूनियन के बाद एशिया में सिर्फ दूसरा मुल्क था जिसने ये एजाज़ हासिल किया। रहबर रॉकेट हमने जब 1961 में अपना खला में भेजा, 1964 में हमने अपनी पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज बनाई। ये वाटर रिसोर्सेज की हमने उस वक्त अपनी बनाई ऑर्गेनाइजेशन, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड में भी कोई नहीं सोचता था कि पानी भी कोई ऐसी चीज़ होगी कि जिसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये हमारा आगाज़ था और ये जो हमारे फाउंडर्स थे उनका विजन था पाकिस्तान के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1971 के बाद जब सकूत ढाका हुआ और उसके बाद जब अफ़गानिस्तान की लड़ाई शुरू हुई, तो हमसे एक बड़ी संगीन गलती हुई। वो गलती हमारी ये हुई कि हमने अपनी जो मिलिट्री का जो हमारा R&D था और जो हमारा सिविल R&D था, उसको बिल्कुल हमने साइलोज़ में कर दिया, एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा कर दिया। इसके नतीजे में हुआ ये कि आज हम अपनी पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे मॉडर्न मिसाइल सिस्टम का मालिक है। हम मुस्लिम वर्ल्ड की वाहिद एटॉमिक ताकत हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपना मोबाइल नहीं बना सके, हम अपना टीवी नहीं बना सके। हम अल खालिद टैंक के 60-65% जो तकरीबन हिस्से बखरे हैं वो हम खुद बनाते हैं, लेकिन हम अपनी गाड़ी नहीं बना सके। हम जो हमारा JF थंडर, दुनिया में 7-8 मुल्क हैं जो कि फ़ाइटर जेट्स बनाते हैं, हम उन मुल्कों में शामिल हैं। और हम तकरीबन उसका 65-70% जो उसका इलेक्ट्रॉनिक है वो पाकिस्तान के अंदर बनता है, लेकिन हम अपना जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में सिविल साइड के ऊपर देखें तो हम वो चीज़ें नहीं कर सके। फिर दरमियान में एक और बहुत बड़ा जो गलती मैं समझता हूँ जो हुई, और ये शौकत अजीज़ साहब के दौर से हुई, जब हमने फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान को मॉडल करेंगे दुबई या सिंगापुर के तौर के ऊपर, एक इम्पोर्ट इकॉनमी हमने क्रिएट कर दी। अब मसला ये था कि दुबई की जो पॉपुलेशन है 30-40 लाख लोगों की का शहर है, इसी तरह सिंगापुर जो है वो 30-40-50 लाख का शहर है। हम तो 220 मिलियन लोगों का मुल्क थे, 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है। हम तो इम्पोर्ट इकॉनमी सस्टेन नहीं कर सकते जब तक हम अपनी चीज़ें नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपनी इंडस्ट्री क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट नहीं करेंगे। ना तो हमारा इम्पोर्ट के ऊपर गुजारा हो सकता है, ना हम ये कर सकते हैं। अब ये जो असल मुझे लगता है कि जो क्रेडिट जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को और इमरान खान साहब को, वो ये है कि एक तवील अरसे के बाद हमने पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको रिवाइव किया है। एक मुकम्मल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी और अब हमने उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसकी तरफ हम लेके आए हैं। इसमें जो सारे हमारे जो कंसर्न लोग हैं, हमाद अज़हर चूँकि इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और लाहौर से हैं, उनको यकीनन सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं दूंगा। उन्होंने बड़ी इसके ऊपर मेहनत भी की है और हमारी सारी कोशिश ये है कि किस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग को पाकिस्तान में रिवाइव करें। मैन्युफैक्चरिंग होगी तो नौकरियां होंगी। अभी आपने देखा कि टेक्सटाइल का जो बूम आया है कितने अरसे के बाद, उसके नतीजे में इस वक्त फैसलाबाद में और जो मुल्हका इलाके हैं उनमें हमारी लेबर शॉर्टेजेस हो गई हैं, क्योंकि नौकरियां ज़्यादा हैं और लोग कम हैं। लेकिन इसके साथ असल जो काम है जो हमने किया, हमने पहली बार पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री इंटरफेस क्रिएट किया है। अब पाकिस्तान में पहली बार ये हो रहा है कि जो सिविल रिसर्च है वो शेयर हो रही है मिलिट्री के साथ, और जो मिलिट्री रिसर्च है वो शेयर हो रही है सिविल के साथ। और इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो हमने कोविड में देखी। कोविड में जब 26 फरवरी को पहला कोविड केस पाकिस्तान में आया था, तो हम नेट इम्पोर्टर थे हर चीज़ के। हम जो मास्क पहन रहे हैं, हम जो हमारे डॉक्टर जो गाउन्स पहनते हैं, उसके साथ जो सैनिटाइज़र्स हैं, ये हर चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये प्रोजेक्ट्स जो कोविड मटेरियल के शुरू किए। और दूसरा जो मेरा हमेशा नुक्ता नज़र रहा है वो ये है कि हमें प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट जो है उसको एक ही काम करना चाहिए कि गवर्नमेंट को बिज़नेस वगैरह से दूर रहना चाहिए और लेट द प्राइवेट सेक्टर लीड द एफर्ट। अगर गवर्नमेंट करना शुरू कर देगी तो वो उसमें आप नतीजा जो है वो शुरू होने से पहले ही लिख सकते हैं कि वो बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का एक सेक्शन अफसर जाके बैठ जाएगा और वो सारे सिस्टम को जो है वो आपका वो नहीं चलने देता। सो कोविड में भी हमने ये एफर्ट की। सबसे पहले PCSIR में हमने अपना जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं, सैनिटाइज़र्स हैं, वो बनाने शुरू किए। उसके बाद हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ काम किया।
इसी तरह से ये जो कोविड की हमने अपनी लेबॉर्ट्रीज़ ओपन की, जो मास्क बनाने की, उसमें भी हमने प्राइवेट सेक्टर को ही फैसिलिटेट किया कि वो आए और आगे बढ़े। जब वेंटिलेटर्स में इटली में पहले मर्सिडीज़ ने पहले अपना वेंटिलेटर का डिज़ाइन ओपन किया, फिर इटली के इंजीनियर्स ने ओपन किया, और हमारे इंजीनियर्स को मौका मिला कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकें वेंटिलेटर के डिज़ाइंस के ऊपर। उसमें भी हमने जो एयरफोर्स के इंजीनियर्स थे, जो पाकिस्तान मिलिट्री के इंजीनियर्स थे, उनको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ बिठाया और 57 डिज़ाइंस जो हमें मौसूल हुए, उसको हमने पहले 11 डिज़ाइन उनमें से शॉर्ट लिस्ट किए, फिर 7 डिज़ाइन जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए, और फिर 4 डिज़ाइन जो हैं वो फाइनल हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो अपनी सिरिंज तक नहीं बना रहा था, आज सिर्फ उन 18 ममालिक में शामिल है जो अपने वेंटिलेटर्स बना रहा है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ स्टफ दैट हैज़ एक्चुअली चेंज द लैंडस्केप फॉर पाकिस्तान बिजनेस। ऑल्सो मैं आपकी तवज्जो इधर दिलाना चाहूँगा कि जो बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के, आपने बड़ा अच्छा किया है कि आपने LCC को जो है वो एक मॉडर्न लुक दी है, उसको वर्चुअल बनाने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हमें एक बड़ी कीन नज़र रखनी चाहिए कि कौन से बिजनेसेस हैं जो मार्केट से आउट हो रहे हैं और कौन से बिजनेसेस हैं जो मार्केट में इन हो रहे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो इस वक्त चाइना की और अमेरिका की लड़ाई की वजह से जो टेक्नोलॉजी वॉर है दोनों की, अमेरिका की और चीन की, उसकी वजह से ये जो 5G है ये डिले हो गया। लेकिन जो 5G अगर जो ही ये 5G की टेक्नोलॉजी मुकम्मल है, लेकिन सियासी वजूहात की वजह से 5G इस वक्त नहीं आ रहा। लेकिन जब 5G आ जाएगा तो ये इतना ही बड़ा रेवोल्यूशन होगा जितना कि इंटरनेट खुद है। आप अपने सामने आप देखिए कि कितने बिजनेसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। मसलन बहुत पुरानी बात को तो छोड़ दें, सिर्फ अगर आप पिछले 8-10 साल में देखें कि कितने बिजनेसेस जो हैं वो आए और ख़त्म हो गए। हर जगह के ऊपर हम देखते थे कि फ़ोटो कॉपियर मशीन लगी होती थी और लोग अपने फ़ोटो कॉपीज़ करवाते थे, अब वो नहीं है। टेलिक्स, टेलीग्राम, ख़त, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हत्ता कि अगर आप पिछले 3 सालों में, जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, तो मैं अपने जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, दोस्त हैं, उनको मैं कह रहा था कि ये जो हमारा फॉर्मल मीडिया है इसको बड़ा झटका लगेगा, बिकॉज जो इनफॉर्मल मीडिया है वो टेक ओवर कर लेगा, और 5 सालों के बाद हमें बहुत ज़्यादा जो चैनल्स हैं वो टेलीविज़न के बजाय हम इंटरनेट के ऊपर देख रहे होंगे। मैंने 5 साल कहा था, बट अभी भी आप देखें कि सिर्फ 2.5 साल में ही हमारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो एक्चुअली दे हैव टेकन ओवर द फॉर्मल मीडिया। और अभी उनको पूरी कोई गवर्नमेंट का कोई जो है वो आसरा हासिल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सारी की सारी रेवेन्यू है या जो उनका एडवर्टाइजिंग है वो सारी की सारी फॉर्मल मीडिया को जा रही है, इनफॉर्मल मीडिया को भी नहीं जा रही। और लेकिन ये रुक नहीं सकेगा, अगले 2 साल के बाद आप देखेंगे कि आपका ये सारा मामला जो है इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में आप देखेंगे कि 5G जब आता, अभी मैंने पिछले दिनों मैंने ट्वीट किया कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ अगर अगले 10-15 साल में आप देखेंगे तो जो हमारा 5G के बाद जो हमारा डॉक्टर का पेशा है उसको एक्चुअली ठीक ठाक झटका पड़ेगा, क्योंकि जो एल्गोरिदम्स आ रहे हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट विल टेक ओवर द रेगुलर जो हमारा डायग्नोसिस का सारा सिस्टम है उसको वो कर लेगा। बिकॉज अभी भी IBM की अगर आप जाएं इंटरनेट के ऊपर और वॉटसन की वेबसाइट देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उस पे जो डायग्नोसिस है जो बीमारी का वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बनिस्बत एक फ़िज़िकल डॉक्टर के। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, लेट से आपने एक जो है वो 30 साल की उम्र में अपना डाटा डाला कंप्यूटर में उस डॉक्टर के पास, उसके बाद जब आप 20 साल बाद उस कंप्यूटर को जाएंगे और वो खोलेंगे तो उसके पास आपका 30 साल का डाटा भी पड़ा हुआ। सो द काइंड ऑफ एनालिसिस कंप्यूटर कैन मेक आपकी सेहत के बारे में वो फिज़िकल डॉक्टर्स नहीं कर सकेगा। इसी तरह से जो टीचर्स हैं, अभी भी अगर आप देखें कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास टीचर्स नहीं हैं। सो अगला जो मरहला है उसमें टीचर्स की बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं रहेगी, बिकॉज आपका इंटरनेट जो है वो, इसीलिए मैं IT मिनिस्ट्री अमीनुल हक साहब से मेरी सिर्फ यही गुजारिश होती है कि एक्चुअली IT मिनिस्ट्री को कोई और काम नहीं करना चाहिए, स्प्रेड एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट के ऊपर वो जोर दे। क्योंकि अगर पाकिस्तान इंटरनेट में पीछे रह गया तो फिर हमें 3 सालों में या 5 सालों में बहुत बड़ा झटका जो है वो लगेगा। अभी भी आपने देखा ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू हुई
तो उसके अंदर बहुत सारे जो कॉलेजेस के हमारे लोग थे या यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, उन्होंने उसके ऊपर शोर मचाया कि हमारा तो स्टेबल इंटरनेट ही नहीं है। इवन अभी भी जब हम लाहौर शहर में निकलते हैं बाहर तो हमारी इंटरनेट कॉल बैठ जाती है। इसका मतलब यह है कि हमारा इंटरनेट सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं है। और अगर अगला 3 सालों में हम एक स्टेबल इंटरनेट अपने लोगों के लिए नहीं ला सके तो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा झटका पड़ेगा। इसी तरीके से जो बाकी बिजनेसेस हैं, मसलन देखें, सच्ची बात यह है कि हमने $3 बिलियन जब लिए तो हमें सऊदी अरेबिया गए, हम यूएई गए और बाकी जगहों के ऊपर इधर उधर करके हमने $3 बिलियन पाकिस्तान के लिए शुरू में लिए, क्योंकि जब हुकूमत आई थी तो ज़ाहिर है हम तो बैंकरप्सी की तरफ जा रहे थे और हमें पैसे चाहिए थे। सिर्फ एक क्रीम ऐप जो एक पाकिस्तानी लड़का है मुदस्सर, उन्होंने बनाई और ज़बरदस्त आदमी है, टेक्नोलॉजी के आदमी है, उन्होंने वो क्रीम ऐप अकेली जो है वो $2.5 बिलियन की बेच ली है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है। इसी तरह से व्हाट्सएप जो बिल्कुल आप देखते हैं हमारी ज़िंदगियों में एक हिस्सा ही बन गया है, ये टोटल मेरा ख्याल है इसमें कोई 19 या 21 लोग हैं मुलाजम हैं और ये तकरीबन इतने ही $1 बिलियन की कंपनी है, $20 बिलियन की कंपनी है और शायद अब तो इससे भी ज़्यादा की कंपनी होगी। सो हमने देखना ये है कि कौन से बिजनेसेस जो हैं वो आगे आएंगे, कौन से बिजनेसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके मुताबिक हमें अपनी चीज़ें जो हैं वो बढ़ानी है। इसीलिए से मैं अपने जो नए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और बच्चे हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी का है और अगर आप और प्रिसाइज होना चाहते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी का है। एक तरफ कंप्यूटर साइंस होगी, दूसरी तरफ बायोटेक्नोलॉजी होगी और ये दोनों का जो मर्जर है ये एक दुनिया का जो फ्यूचर है उसको शेप अप करेगा। इसलिए बायोटेक्नोलॉजीज़ को बड़ी अहमियत। और बायोटेक्नोलॉजीज़ से मुझे जो तारिक बात कर रहे थे CBD की, इस वक्त जो टेक्सटाइल है, फॉर एग्जांपल हम इस बात को बात कर रहे हैं कि जी हमारे यहाँ कॉटन जो है वो बड़ा नीचे जा रहा है, बट फ्रेंकली हमने इसको भी देखना है कि कॉटन के दिन भी कितने हैं टेक्सटाइल के लिए। शायद अगले 10 साल हो जाएंगे, 15 साल हो जाएंगे, 20 साल हो जाएंगे, बट अल्टीमेटली अगर आप कैनेबिस को देखेंगे तो कैनेबिस का जो रेशा है वो टेक्सटाइल से 1000 गुना बेहतर है। और इस वक्त भी सारी जो है लेवाइस जीन्स जो है वो एक्चुअली कैनेबिस की बन रही है। और इसलिए हमने ये जो CBD का हम फ्रेमवर्क लेके आए हैं और जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का फ्रेमवर्क हमने इंट्रोड्यूस करवाया है और ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब की सपोर्ट थी जिसकी वजह से ये फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पे अप्रूव हो सका। ये तकरीबन $300 बिलियन की इस वक्त जो है वो मार्केट है और हम उसमें अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। कैनेबिस के ऊपर जो हमने इस वक्त ये किया है कि हमने PCSIR जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इदारा है उसको लाइसेंस दिया है ANF ने और फेडरल कैबिनेट ने। अब PCSIR प्राइवेट वेंचर्स कर रहा है, जॉइंट वेंचर्स हम कर रहे हैं जिसमें हम जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ हम पहले 5 फॉर्म्स हम जो है पहले बना रहे हैं। हमारे पास जेहलम में, पेशावर में और उसके साथ चकवाल में हमारे पास और इस्लामाबाद में हमारे पास फॉर्म्स हैं जो, क्योंकि इस इलाके में पोटोहार को इसलिए हमने सेलेक्ट किया है कि यहाँ पे जो कैनेबिस है वो नेचुरल ग्रो होती है। सो वहाँ पे इसको इधर से शुरू किया, लेकिन इसके बाद सिंध में भी जा रहे हैं, इसके बाद जो है वो मरी में भी जा रहे हैं और इसमें और भी हम जो है वो चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। सो जो भी जो हमारा जो फार्मास्यूटिकल है वो जो ट्रेडिशनल हमारी जो एक हमारा है मेडिसिन एरिया, उसमें भी बहुत बड़ा एक इस वक्त सर्ज है दुनिया में, क्योंकि दुनिया दोबारा ऑर्गेनिक की तरफ आ रही है। इसीलिए हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें आपने तारिक ने इसको बड़ा सही तौर के ऊपर मेंशन किया। हमारी एक्सपोर्ट्स के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो सर्टिफिकेशन है और पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसको जब मैंने साइंस मिनिस्ट्री संभाली थी तो फ्रेंकली इट वाज लिटरली अ डेड मिनिस्ट्री। जब 17 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, उनमें से तकरीबन जो 12 डिपार्टमेंट्स थे उनके हेड्स ही नहीं थे। पाकिस्तान इज़ प्रोबेबली द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड कि जब 2008 में जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो हम 0.64% अपनी GDP का साइंस और टेक्नोलॉजी पे ख़र्च कर रहे थे, लेकिन 2018 में जब ये हुकूमत जब हम लोग हुकूमत में आए, PTI हुकूमत में आई, तो उस वक्त हम 0.24% GDP का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे खर्च कर रहे थे। सो पाकिस्तान इज़ प्रोबेबली द ओनली कंट्री जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर 10 सालों में अपना बजट आधा कर दिया था।
इन 2 सालों में जो 1.5 साल तकरीबन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमने ना सिर्फ इस मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिवाइव किया है, बल्कि मुझे बड़ा आई एम रियली आई वुड से दैट आई एम प्राउड ऑफ माय पीपल एंड माय मिनिस्ट्री कि हमने 2 पूरी नई इंडस्ट्रीज़ इस मुल्क में खड़ी की हैं। एक पूरी हेल्थ की इंडस्ट्री हमने खड़ी की है। हेल्थ इक्विपमेंट पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं बनता था। अब गो $400 मिलियन का हम जो सर्जिकल गुड्स हैं सियालकोट से वो एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट है हम सारे का सारा इंपोर्ट कर रहे थे। अब पाकिस्तान के अंदर इस साल मुझे उम्मीद है कि जो दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो भी पाकिस्तान के अंदर आकर के अपना जो डायलिसिस मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लगाएगी। सो हमने एक पूरी हेल्थ की इंडस्ट्री शुरू की। दूसरा, जब हम आए थे तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो व्हीकल्स हैं वो अभी लाहौर में स्मोक हो जाती है। आप देखते हैं इतना ज़्यादा जो है वो यहाँ पे ज़िंदगी ही अजाब में आ गई है। इसकी बुनियादी वजह तो हिंदुस्तान से आने वाला वो धुआं है जो कि फसलों से आता है, लेकिन हमारी अपनी जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन लाहौर की इन्वायरमेंट में है वो ट्रैफिक की है। हम कंबस्शन इंजन तकरीबन 35% जो पोल्यूशन है वो कंबस्शन इंजन की वजह से आ रही है, और दुनिया जो है वो मूव कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। हमने आके पाकिस्तान के अंदर पहली बार, हमारी कोई पॉलिसी नहीं थी, सो आई एम सो ग्रेटफुल टू मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, अमीन असलम साहब ने और जरताज ने, और उसके बाद हमाद अज़हर जब इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर्स बने तो हमने मिल कर के ये एक ईवी पॉलिसी खड़ी की। और इस वक्त जो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है वो दुनिया इस साउथ एशिया की प्रोबेबली द मोस्ट ल्यूक्रेटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। और मुझे उम्मीद ये है कि अगले 3 सालों में आप देखेंगे कि हमारी जो मेजर हमारे कम से कम जो बड़े शहर हैं इनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो टेक ओवर कर लेंगी। और हमने हमारा फोकस जो है वो मोटर बाइक से और रक्षा से है, और उसके बाद बसेस और ये जो हमारी गाड़ियां हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। सो मेरा ये ख्याल है जी कि जिस तरीके से इंशाल्लाह हम लोग इस वक्त जो हमारा फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। हमें प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा ऊपर लाना चाहिए। बिज़नेस गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट को उसमें से निकलना चाहिए। मैं तो शदीद हामी था कि हमें पहले साल ही जो प्राइवेटाइजेशंस हैं वो कर देनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त उस पर राय जो है वो इकट्ठी नहीं हुई। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि द प्राइवेटाइजेशन इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड, और गवर्नमेंट अपने आप को रेगुलेशन में रखे। और इसीलिए मैंने PSQCA को भी कम से कम मैं अपनी मिनिस्ट्री में प्राइवेटाइज कर रहा हूँ। उसके जो फंक्शंस हैं वो सिर्फ जो रेगुलेशन के फंक्शंस हैं वो गवर्नमेंट के पास रहेंगे, बाकी लेबॉर्ट्रीज़, टेस्टिंग, सैम्पलिंग, ये सारा जो है वो हम प्राइवेटाइज कर देंगे। ऑल्सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू कि आप लोगों में से जो भी जो बिज़नेस लोग अगर आप किसी वक्त चाहें तो जूम के ऊपर, किसी वक्त चाहें तो जो मॉडर्न बिजनेसेस हैं उनके ऊपर आई कैन ऑलवेज ब्रिंग माई पीपल विद यू टू सिट विद यू कि कौन से मॉडर्न बिजनेस फॉर्म्स अब अगर आपने बनाने हैं, एग्रीकल्चर फॉर्म्स बनाने हैं वो कैसे बनाने चाहिए, लाइफ स्टॉक फॉर्म्स बनाने हैं तो कौन से बनाने चाहिए, अगर हमने ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो हमें कैसे जाना चाहिए, अगर हमने 3D प्रिंटर्स लगाने हैं तो हमें जो है वो कैसे लगाने चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ में जाना चाहते हैं तो हमें कैसे जाना चाहिए। आई कैन हैव अ होल सेशन विद यू, आई कैन ऑलवेज ब्रिंग माई पीपल इसके ऊपर स्पेसिफिक इश्यूज़ के ऊपर। लाइकवाइज अगर आप लोगों का कोई आइडिया हो जिसमें आप समझते हो कि टेक्नोलॉजी अनेबलर्स चाहिए। सेकेंडली ऑल्सो आई वुड लाइक तारिक के आपके होते हुए लाहौर LCCI का जो हमारी कम से कम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, नस्ट है, कॉमसेट्स है, न्योटेक है, उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक करीबी रिलेशनशिप जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ और जो इंडस्ट्री का लिंकेज है ये है जो मुल्कों को आगे लेके गया है। अकेले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिका की इकॉनमी को बिल्कुल बदल के रख दिया। अगर आपने देखना है कि कौन सा मुल्क आगे जा रहा है तो आप उनके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को ही एनालाइज करेंगे कि वो कैसे हैं। कोई और मैयर नहीं है किसी मुल्क का फ्यूचर देखने का। So thank you very much for having me once again, and I hope that we will be able to have more interaction on this. थैंक यू चोई साहब, आपने बिल्कुल सही बात की। रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट को होना चाहिए और बिजनेसमैन को करना चाहिए। और जो एकेडमिया लिंकेज की भी मैंने कमेटी फॉर्म की है, मैंने ऊपर इंक्यूबेटर सेंटर भी बनाया है, वो हमारी लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ तो काम कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हम आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं नस्ट और जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है इंशाल्लाह वी विल कॉल ऑन देम और उनसे MOU साइन करके उनको हम अपनी कमेटीज़ में डालते हैं और अपने लोगों को भी उनकी कमेटीज़ में डालते हैं ताकि मिलकर काम किया जा सके। जी शायद
So, thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Mr. Saab, for sharing your wisdom with us. I would like to request you to push the button to inaugurate this. आपको उधर से